Very good morning to Shrina and Rohan Banu. So here we go with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights and the video shall be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. Yes, once again, very good morning to all my dear students. We'll wait for next 1 minute and then we'll start. Yes, so here we go with the today's session. Let's have the recap of the module 3 or you can say the unit 3 security analysis, risk and return. I'm going to share the slides if it's already there. I'm changing it one by one and will give you brief about each and every slides that we have done and then we'll start with the new one. So we have done with the basics of risk and return, define risk and define return. We have done with that. Components of risk also we have done. That's systematic and unsystematic risk. Then what do you mean by the systematic risk and unsystematic risk? Systematic risk is also known as non diversifiable risk. आप उसको नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी बोल सकते हो and it's also unavoidable. Then types of systematic risk like market risk, in that tangible events, intangible events, interest rate risk, purchasing power risk,
अभी रिसेंटली अगर आप लोगों को मालूम है तो इसराइल में थोड़ा सा युद्ध का माहौल हो गया है। आप लोग अगर न्यूज़ में अपडेटेड रहते हो तो यू माइट हैव हर्ड। सो थोड़े साल पहले भी ऐसा हुआ था कि इसराइल ने 6 दिन के अंदर, 6 या तो 7 दिन के अंदर 6 कंट्री को हरा दिया था। उसका एक पूरा स्टोरी है, मैं आपको शेयर करूंगा इफ टाइम परमिट्स। बट दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड। सो अगर यहाँ पे वो युद्ध जो वॉर जो है वो बड़ा रूप हासिल कर लेता है तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट मार्केट वेरी एडवर्सली। सो इट कैन बी अ काइंड ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। यहाँ पे है टेंजिबल इवेंट्स में वॉर जो है सेकंड वन। Then unsystematic risk, or you can say the diversifiable risk, then you can control up to certain extent, like business risk, internal business risk, external business risk, financial risk, and so on. So these are the risks that you can control. Somehow in certain cases अगर आपका बिजनेस जो है वो डाउन हो रहा है तो यू कैन डू समथिंग एंड आप वहाँ पे बाउंस बैक हो सकते हो। यहाँ पे अनसिस्टमेटिक रिस्क के बारे में मैं आपको एक बताऊंगा। यस, बजाज ऑटो लिमिटेड, मैंने बताया था आपको गाइस बजाज ऑटो लिमिटेड के बारे में। हैव वी डिस्कस अबाउट इट, बजाज ऑटो लिमिटेड? हमने बात की थी स्टूडेंट्स बजाज ऑटो लिमिटेड के बारे में। गाइस आर यू देयर? ओके। सो ठीक है, चलो फिर भी थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको। व्हेन आई वाज देयर इन दिल्ली तो आई मेट मिस्टर राजीव बजाज। तो राजीव बजाज से मिला था एंड वहाँ पे हमारे बीच में थोड़ा डिस्कशन भी हुआ था, काफ़ी शॉर्ट था। बट यस, द वे ही हैज बाउंस बैक हिज कंपनी फ्रॉम अनसिस्टमेटिक रिस्क वाज टू गुड। काफ़ी बढ़िया था। उसने कितना रिसर्च किया, कितने सर्वेस किए, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इतना रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया। एक टाइम था जब हम लोग, मतलब हमारी एज की अगर हम बात करें तो 90s की बात करें तो वहाँ पे एक एड काफ़ी फेमस हुई थी, हमारा बजाज हमारा बजाज। काफ़ी बढ़िया एड थी एंड फेमस भी इतनी हुई थी जिन्होंने दिलों को छू लिया था। बट आफ्टर दैट कंपनी जो है वो समहाउ सस्टेन नहीं कर पाई एंड धीरे धीरे बंद होने की कगार पे आ गई थी। फिर इसके बाद राजीव बजाज ने कमान संभाली। उन्होंने देखा कि भाई यस, यहाँ पे यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा है तो उसको उस हिसाब से हमें बाइक या फिर कुछ ऐसा जो है वो देना चाहिए जो मार्केट में चले। तो फिर उसने क्या किया, उसने एक बाइक लॉन्च किया, BYK। सबसे पहला बाइक जो सिर्फ 27,000 का था, बट somehow वो फेल हो गया। फिर उसके बाद उन लोगों ने बजाज बॉक्सर लॉन्च किया, बॉक्सर 80 एंड बॉक्सर MT 34,000 रुपीज़ में, जो अपनी एवरेज की वजह से काफ़ी चल गया। उसकी एवरेज 90 किलोमीटर पर लीटर की थी, तो एवरेज की वजह से वो बाइक जो है वो चल गया। फिर उसके बाद उन लोगों ने पल्सर लॉन्च किया, पल्सर 150, पल्सर 180, 200, 220, देन डिस्कवर, विक्रांता, डोमिनार एंड मैनी मोर। सो दिस इज हाउ, देखो ये सभी पॉइंट्स, इंटरनल बिजनेस रिस्क, एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क, ये सभी में उन लोगों ने बाउंस बैक किया, ब्रेक थ्रू किया एंड राइट नाउ दे आर ऑन टॉप। उसका मार्केट शेयर भी काफ़ी बढ़िया। सो अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है वन कैन अवॉइड एंड इवन even if your company's goodwill is good, then definitely your business is going to be on the top. Then return is the most important aspect, क्योंकि ये काफ़ी मैटर करता है। हम अपने करंट मनी को सेक्रीफाइस करते हैं फ्यूचर रिटर्न के लिए, सो दैट हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा या फिर अच्छा रिटर्न जो है वो मिलना चाहिए। देन कंपोनेंट्स ऑफ रिटर्न हमने देखे थे, करंट रिटर्न, और यू कैन से द इनकम, एंड कैपिटल रिटर्न, दैट यू कैन से द कैपिटल अप्रिसिएशन। ये हमने पूरा कैलकुलेशन किया था कुछ एग्जांपल के साथ। द टोटल रिटर्न फॉर एनी सिक्योरिटी और असेट इज डिफाइंड, टोटल रिटर्न इक्वल टू करंट रिटर्न प्लस कैपिटल रिटर्न। करंट रिटर्न कैन बी जीरो, whereas the capital return can be negative टू। करंट रिटर्न मैक्सिमम जीरो हो सकता है, माइनस में नहीं जा सकता है, बट कैपिटल रिटर्न माइनस में जा सकता है। आज आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, 10,000 में परचेज की, कल मार्केट में मंदी आ गई तो वो आपको 8,000 में भी सेल करनी पड़ सकती है।
तो वहाँ पे आपको कैपिटल रिटर्न जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। देन ये हमने मेजर किया था, मेजरिंग हिस्टोरिकल रिटर्न, टोटल रिटर्न, ऑल दोस थिंग्स। गाइस, आर यू रिमेंबर विद दिस? ये आपको याद है ना? Okay. Then we have measured it in the normal terms, R equal to C plus into bracket PE minus PB divided by PB, where R is the total return over the period, C is the cash payment received during the period, P is the ending price and PB is the closing beginning price. ये एक इक्विटी स्टॉक का हमने किया था, 60 रुपये का स्टॉक था, 2.40 डिविडेंड मिला एंड एंड ऑफ द ईयर में उसका प्राइस 69 हो गया था। तो टोटल रिटर्न आपको 0.19 और यू कैन से 19% जो है वो मिला था, डिविडेंड और दोनों मिला के। ये उसका ब्रेकअप है। 2.40 जो था वो डिविडेंड मिला, डिवाइडेड बाई 60 स्टार्टिंग प्राइस, प्लस 69 जो एंडिंग प्राइस था उसमें से बिगनिंग प्राइस 60 डिवाइड किया, माइनस किया एंड डिवाइडेड बाय 60। तो आपको इंडिविजुअल रिटर्न मिल जाएगा। 4% जो था वो करंट रिटर्न एंड 15% जो था वो कैपिटल रिटर्न। Then return relatives. Often it is necessary to measure returns in a slightly different manner. This is particularly true when a cumulative wealth index or a geometric mean has to be calculated, because in such calculations negative returns cannot be used. यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स जो है वो आपको यूज नहीं करना है। दैट्स वाई यू हैव टू फाइंड आउट द रिटर्न रिलेटिव, जिसमें 1 प्लस 0.19, यहाँ पे आपने देखा है 0.19 मिला है हमको रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न रिलेटिव इफ यू वांट टू फाइंड आउट देन यू हैव टू ऐड 1 प्लस 0.19। रिटर्न रिलेटिव कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वहाँ पे ऑलवेज 1 प्लस किया जाता है। So this is, you can see, return relative equal to 1 plus total returns in the decimal. Decimal consider करना है, percentage consider नहीं करना है। So 0.19 equal to 1.9. Same like that. Note that even though the total return may be negative, the return relative cannot be negative. Worst come worst scenario में वो zero हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पे 0.19% हमें प्लस रिटर्न मिला है। सपोज हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, 100 के 100 चले गए, तो रिटर्न कितना होगा? -100%। 100% वहाँ पे आपको रिटर्न माइनस में मिल रहा है। तो यहाँ पे होगा रिटर्न रिलेटिव में 1 प्लस -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, उनसे ज़्यादा नहीं होगा, नेगेटिव में कभी भी नहीं होगा। देन क्यूमुलेटिव वेल्थ इंडेक्स CWIs, W0 1 plus R1, R1 मीन्स ईयर 1, देन R2, R3, R4 जितने भी ईयर्स का आपको फाइंड आउट करना है, वेयर N will stands for the number of years and all those things. When Rn is the total return for period N and cumulative wealth index is the cumulative wealth index. Arithmetic mean, this is the formula for that. Geometric mean, guys, you are aware about arithmetic mean and geometric mean is the basic. Are you aware about these things or should I start with the basic one from the beginning? Students, are you aware about arithmetic mean and geometric mean or should I start with the beginning itself? Okay, so good. So I hope these are the clear things to you. You are well aware about the arithmetic mean and geometric mean. ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है? I assume that you guys are much clear with arithmetic mean and geometric mean. Good. So we'll move to the next one. Now real returns equal to 1 plus nominal return divided by 1 plus inflation rate. Now can anyone tell me अभी inflation rate जो है वो कितना चल रहा है? Anyone from you guys? Inflation rate अभी कितना चल रहा है? Any idea अभी inflation rate कितना चल रहा है students?
हेलो, नॉक नॉक, कोई है? ओके, गूगल जिंदाबाद 6.2। बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, कंसिडर करें, तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5% के आसपास रहता है। ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ, जनरल सिनेरियो में, एग्जैक्ट नहीं, यस एग्जैक्ट में नहीं बता रहा हूँ, बट ऑन एन एवरेज जो है वो इन्फ्लेशन रेट 5 के आसपास चलता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन करता हूँ, इफ़ यू गाइज कैन अंडरस्टैंड देन प्लीज आंसर मी। बजट डिक्लेयर होता है, आप लोगों को मालूम होगा, जब बजट डिक्लेयर होता है तो वहाँ पे हमारी डेफिशिएंसी जो है वो कितना परसेंट है, मालूम है आपको? एनी आइडिया, लाइक मीन्स वेरी ऑनेस्टली, एनी आइडिया अगर आपको कोई है, हमारा डेफिशिएंसी कितना है बजट में? जैसे कि हमारी इनकम जो है वो 100 रुपीज़ है और उसके सामने हमारे एक्सपेंसेस जो है वो 120 है, तो वहाँ पे 20% डेफिशिएंसी है हमारे बजट में, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ हमारी गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें 6% के आसपास की डेफिशिएंसी जो है वो हम लोग सफ़र कर रहे हैं, कि हमारी इनकम 100 रुपीज़ है पर हमारे एक्सपेंसेस जो है वो 106 रुपीज़ है। तो आप समझ सकते हो ना, 6 रुपीज़ वी आर लेकिंग, 6 रुपीज़ हमारे पास कम पड़ते हैं। तो नाउ जब हमारा बजट ऑलरेडी डेफिशिएंसी वाला बजट है और उसमें भी 5% का इंटरेस्ट रेट अगर आप ऐड करोगे, तो ओवरऑल हमारी डेफिशिएंसी जो है वो 11% हो जाएगी। आप थोड़ा समझ रहे हो मेरा कहने का क्या पॉइंट है? हम ऑलरेडी डेफिशिएंसी में चल रहे हैं एंड उसमें भी इन्फ्लेशन रेट को हम कंसिडर करें तो 6 + 5 = 11% हमारा ग्रोथ जो है वो माइनस में हो रहा है। फिर भी हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी जीडीपी जो है वो 8% से ग्रो हो रही है, 7% से ग्रो हो रही है। कैन एनीवन टेल मी हाउ दिस इज पॉसिबल? यू गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स? अक्सर ये बोला जाता है। So real return 1 plus nominal return and 1 plus inflation return -1. Now sources of risk, business risk, risk like poor business performance, causes maybe heightened competition, emergence of new technology, डेवलपमेंट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, ये सब हमने लास्ट में किया था जब मैंने आपको जियो का एग्जांपल दिया था एंड फ्यू अदर एग्जांपल्स। बिहार की हमने बात की थी जहाँ पे लीकर बैन कर दिया, महाराष्ट्र की बात की थी जहाँ पे प्लास्टिक बैन कर दिया था, एंड सो ऑन। देन इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड मार्केट रिस्क। नाउ मेजरिंग हिस्टोरिकल रिस्क, हिस्टोरिकल रिस्क जो है वो मेजर करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एज फार एज द स्टॉक्स आर कंसर्न। कोई भी स्टॉक होगा, कोई भी शेयर होगा, कोई भी स्क्रिप्ट होगी, वहाँ पे वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। Risk refers to the possibility that the actual outcome of an investment will differ from the expected outcome. हम कुछ एक्सपेक्ट अलग करते हैं, एक्चुअल में रियल रिटर्न हमें कुछ अलग मिलता है। अगर पॉजिटिव मिलता है देन इट्स गुड, अगर नेगेटिव मिलता है तो वी नीड टू थिंक ट्वाइस। So that's why risk refers to the possibility that the actual outcome, or you can say the return, or you can say the yield,
Risk refers to the possibility that the actual outcome of an investment will differ from the expected outcomes. Risk refers to the variability or dispersion. If an asset's return has no variability, it is riskless. सिंपल. बैंक में जाओ, सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रख दो, 4% रिटर्न मिलेगा. कोटक में रखोगे 6% मिलेगा. नो चेंज विल बी देयर इन द रिटर्न. कोई चेंज नहीं होगा. मीन्स riskless. No risk is there. Now for that we need to go for the variance and standard deviations. The most commonly used measure of risk in finance is variance or its square root, the standard deviation. The variance and standard deviation of historical returns can be defined like this. The standard deviation is equal to into bracket sigma ni into bracket ri minus r bar bracket over square divided by n minus 1. When ri will be stands for the return per year, first year return, second year return, third year return and so on. I have shown you one video in the last session, अगर आपको याद है. RI, R bar, standard deviation, how to calculate standard deviation. स्टूडेंट्स आपको याद है मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो दिखाया था 14 मिनट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन का. आपको याद है वो? ओके गुड. सो एटलीस्ट आपको ये तो आइडिया आ गया हाउ टू कैलकुलेट आर आई एंड आर बाय आर बार. Measuring historical risk, standard deviation equal to under root standard deviation square, where the standard deviation square is the variance of return. How much variance will be there in the return? You are expecting 20% and now it's only 5%. So 15% variance, or you can say the variance is there. RI is the return from the stock in period I equal to 1 and so on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आपको जितने भी साल का कैलकुलेट करना है उस हिसाब से. R bar is the arithmetic return and N is the number of periods. Now to illustrate, consider the return from a stock over a 6-year period. कोई भी एक स्टॉक कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स. 6 साल का यहाँ पे रिटर्न दिया गया. टाटा मोटर्स का 6 साल में पहले साल का रिटर्न 15%, दूसरे साल का रिटर्न 12, तीसरे साल का 20%, चौथे साल का -10 नेगेटिव रिटर्न मिला. फिफ्थ ईयर में 14 एंड सिक्स ईयर में 9% का रिटर्न हमको मिला. हम ये ऐसा एज्यूम करके चल रहे. नाउ period means 1, 2, 3, 4, 5, 6. Return RI equal to 15, 12, 20, -10, 14 and 9. Deviation RI minus R bar 5, 2, 10, -20, 4 and -1. Now the square of that, square of deviation 25, 2 into 2, 4, 10 into 10, 100, 400, 16 and 1. Now the standard deviation equal to sigma Ri minus R bar square n minus 1. It stands 109.2 and standard deviation will stand at 10.45. आपको समझ में आया गाइस कैलकुलेशन कैसे किया है? वो वीडियो में जैसे दिखाया था.
Guys, you understood how the calculations has been done? It's quite easy. Standard deviation square stands 109.2. स्क्वायर को रिमूव करेंगे देन इट विल स्टैंड्स 10.45. मतलब आपका जो स्टॉक है उसमें 10.45 स्टैंडर्ड डेविएशन आपको देखने को मिलेगा. नाउ measuring expected risk and return probability distributions. Now let's assume that probability of a stock A, or you can say the Tata Motors, to rise is 20%. Then outcome क्या हो सकता है? Stock price will rise, 20% probability है, and stock price will not rise, उसकी probability जो है वो 80% है. अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ से आपको जामनगर जाने के लिए 1 घंटा लग सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि या तो 1 घंटा लग सकता है या तो उससे ज़्यादा लग सकता है. अब वो ज़्यादा है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट इन द स्टॉक मार्केट वी कैन इजीली डिफाइंड इट. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि एक स्टॉक जो है उसके प्राइसेस बढ़ने के चांसेस प्रोबेबिलिटी जो है वो 20% है. तो आउटकम क्या हो सकता है कि स्टॉक के प्राइसेस जो है उसके बढ़ने के चांसेस 20% है और नहीं बढ़ने के चांसेस 80% है. इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी कॉमन लॉजिक. अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके एग्ज़ाम के पास होने के चांसेस जो है वो 90% है, तो फेल होने के चांसेस कितने परसेंट हुए? 10%. 100 से ज़्यादा नहीं होंगे. इफ़ आई से योर probability to pass in the exam stands 90%, remaining 10% will be the failure probability. So measuring expected return, and you can say the risk and return, expected rate of return, E stands into bracket R equal to sigma RIPI. बूम मार्केट में प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.30% है. नॉर्मल मार्केट में प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.50% है. एंड रिसेशन में प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.20% है. यहाँ पे दो कंपनीज के स्टॉक्स कंसिडर किए गए हैं. एक है भारत फूड्स एंड दूसरा है ओरिएंटल शिपिंग. एग्जाम्पल के लिए दो कंपनीज के स्टॉक के रिटर्न जो है वो कंसिडर किए गए हैं. अब बूम मार्केट मतलब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है. शेयर के प्राइसेस जो है वो बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं. स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है, स्टॉक के इंडाइसिस जो है वो भी आगे बढ़ रहे हैं, निफ्टी भी बढ़ रहा है, बैंक इंडेक्स भी बढ़ रहा है एंड सो ऑन. मतलब पूरा मार्केट जो है वो एक साइड बुलिश है, मतलब बूम मार्केट है. तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस पॉजिटिविटी में अगर हम कंसिडर करें तो 0.30% है. नॉर्मल मार्केट में 0.50% है एंड रिसेशन में 0.20% है. नाउ बूम मार्केट में भारत फूड ने 16% का रिटर्न दिया है, नॉर्मल मार्केट में 11% का रिटर्न दिया है एंड रिसेशन में 6% का रिटर्न दिया है. जबकि ओरिएंटल शिपिंग में बूम मार्केट में आप देख सकते हो 40% का रिटर्न मिला, नॉर्मल मार्केट में 10% का रिटर्न मिला एंड रिसेशन में -20% का रिटर्न मिला. तो मैं एक आपको बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ गाइस कि आपको ये दोनों स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक ज़्यादा वोलेटाइल एंड फ्लक्चुएट लगता है? गाइस ये दोनों स्टॉक्स है भारत फूड्स एंड ओरिएंटल शिपिंग. ये दोनों स्टॉक में से आपको कौन सा स्टॉक्स हाईली वोलेटाइल एंड फ्लक्चुएट लगता है? यस, आंसर्स प्लीज. ओके,
Oriental shipping, good. Your answer is right. But how you can say that? Your answer is right, Dimant. You are absolutely right. But how you can say that? कुछ तो बेस कंसिडर किया होगा. Okay, good, very good. Here I am considering R as return or risk. Okay, rate of return, good. Right, you are right. क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट है. जब मार्केट बढ़ता है तो 40% का रिटर्न मिला, मार्केट कम हो रहा है तो -20% का रिटर्न मिला. बट सेम टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि वो स्टॉक काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि मार्केट के मूवमेंट के साथ वो बढ़िया मूवमेंट जो है वो कर रहा है. हाईली एक्टिव स्टॉक्स. सेम टाइम जो स्टॉक्स हाईली एक्टिव होता है समटाइम्स वो वोलेटाइल भी रहता है. नाउ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन भारत फूड स्टॉक ई इंटू ब्रैकेट आर बी इक्वल टू 0.30. जो यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाऊं, 0.30 जो है बूम पीरियड है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 0.30 0.30 इंटू 16% भारत फूड का रिटर्न बूम पीरियड में, प्लस 0.50 इंटू 11% नॉर्मल रिटर्न. नॉर्मल रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो भारत फूड का 11% है, एंड 0.20 इंटू 6%. रिसेशन में 0.20 इंटू 6%. तो उसका ऑन एन एवरेज रिटर्न जो है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 11.5% है. गाइज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ रहे हो ये कैलकुलेशंस गाइज? ओके, गुड. सो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो फर्स्ट का रहेगा 11.5% रिटर्न वी कैन एक्सपेक्ट. जो दूसरा है ओरिएंटल, बी स्टैंड्स फॉर ई इंटू ब्रैकेट आर बी, वेयर बी स्टैंड्स फॉर भारत फूड स्टॉक्स, एंड दूसरा जो रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेशन है ई इंटू ब्रैकेट आर ओ, वेयर ओ स्टैंड्स फॉर ओरिएंटल शिपिंग. तो उसका आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले में 0.30 सेम रहेगा. पहले साल में ओरिएंटल ने 40% का रिटर्न दिया था, फिर नॉर्मल मार्केट में 10% का, एंड रिसेशन में -20% का. फिर भी उसका ओवरऑल रिटर्न जो है वो 13%. द रिटर्न दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ओरिएंटल शिपिंग is 13%. But when you will be there in all the different situations, आप वहाँ पे रिसेशन में भी बने रहना चाहिए, नॉर्मल मार्केट में भी बने रहना चाहिए, एंड बूम में भी आप वहाँ पे बने रहने चाहिए. अगर आप सभी मार्केट में सभी सिचुएशंस में बने रहेंगे तो ऑन एन एवरेज आपको 13% का रिटर्न जो है वो ओरिएंटल शिपिंग से मिल सकता है. बट सेम टाइम guys, it's a game about entry and exit only. आप कब एंट्री करते हो, कब एग्जिट करते हो, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट में. इससे ज़्यादा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है. कब एंट्री करते हो और कब एग्जिट करते हो. जैसे कि अभी लास्ट मार्च की हम बात करें, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो टाटा मोटर्स जो है वो 150 के नीचे आ गया था, एंड एक ही साल में अभी 300 के ऊपर है. रिलायंस भी 900 के आसपास आ गया था, फिर 2100 जितना हो गया. टीसीएस, इन्फोसिस, मतलब व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द मार्केट दैट मैटर्स अ लॉट. अगर आप मंदी में मार्केट में एंट्री करते हो तो आपके रिटर्न के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है. जब मार्केट बाउंस बैक होगा तो आपको वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे. एंड अगर जब मार्केट हाई पे है और तब आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको रिटर्न कम मिलने के चांसेस ज़्यादा है. So this is what we have measured expected rate of returns of both the stocks, Bharat and Oriental. Now standard deviation of return. This is the standard variance and standard deviation, where PI equal to probability,
आर आई इक्वल टू रिटर्न एंड ई इंटू ब्रैकेट आर इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। सो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स तो फाइंड कर लिए दोनों स्टॉक्स के 11.5 एंड 13%। नाउ वेरिएंस equal to sigma pi into bracket ri minus e into bracket r bracket over and square, and standard deviation standard deviation equal to variance square into bracket 1 by half, or second one will be the easier one. now इसका वेरिएंस जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है गाइस। Can you do it, guys? Can you do it by your own, or should I show you? Okay, let me show you. So now we are going to calculate the variance and standard deviation of both the stocks in different situations. So PI stands for the probability जो हमारे पास already है, RI equal to return जो बूम पीरियड में, नॉर्मल पीरियड में, रिसेशन पीरियड में है 16, 11 एंड 6। PIRI जो है वो 4.8 इंटू 16 इंटू 0.30 विल स्टैंड्स 4.8। देन नॉर्मल में 5.5, रिसेशन में 1.2। So PIRI total will be the 11.5. Then RI minus E into bracket R, that will stands 4.5. Then the square of that 20.25, 0.25. ER मतलब हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड किया था ना भारत फूड स्टॉक का 11.5% था। आपको मालूम है ना गाइज, हमने वो एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड किया था। हियर इट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न 11.5% भारत फूड स्टॉक का। सो प्रोबेबिलिटी है 0.30, रिटर्न फर्स्ट ईयर 16, PIRI, PI into RI will stands for 4.8,
RI माइनस ER एक्सपेक्टेड रिटर्न जो था वो 11.5%। तो जो RI 16 है, 16 माइनस 11.5 will stands 4.5. Then actual में RI 11, expected 11.5, so minus 0.5, and in recession actual 6 and expected 11.5, so minus 5.5. Then the square of that 20.25, 0.25 and 30.25. So PI into bracket RI minus ER square. PI stands 0.30 into 20.25. So you will get 6.075 for the boom period. Guys, आप ये calculations देख रहे हो ना मेरे साथ साथ? Students, are you getting the points now? How the calculations has been made? Okay, you can also use your calculators same time to verify the figures. सो बूम पीरियड में प्रोबेबिलिटी PI मीन्स प्रोबेबिलिटी जो है ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है 0.30% है। बूम पीरियड में रिटर्न 16% है। देन RI इंटू PI मीन्स ये दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, 4.8 उसका आंसर आया है। मैं बूम पीरियड की बात कर रहा हूँ पूरा। देन RI माइनस ER एक्सपेक्टेड रिटर्न जो था वो था 11.5% भारत फूड का, जो हमने कैलकुलेट किया था। लेट मी शो यू वंस अगेन। ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था भारत फूड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 11.5। सो 16 माइनस 11.5 इक्वल टू 4.5, उसका स्क्वायर कर दिया 20.25। देन 0.30 PI 0.30 इंटू 20.25 will stands for 6.075 and last will be the answer 12.25. Now standard deviation, ये इसका फॉर्मूला है सिग्मा PI इंटू ब्रैकेट RI माइनस ER स्क्वायर ब्रैकेट ओवर 1/2। सो 12.25 ये जो आंसर हमें मिला है उसका फाइनल आंसर जो है वो 3.5% होगा। ये हमने ये फॉर्मूला एडॉप्ट किया है। दूसरा वाला फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है वो हमने एडॉप्ट किया। सेकंड वाला जो है वो इजी है, यू कैन ऑल्सो यूज इट। दोनों का आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर भारत फूड स्टॉक is 3.5%. Is it clear, guys? Any doubts for this calculation? Students, any doubt for these calculations? If any, please feel free to ask. Everybody, any doubts for this calculation? ओके गुड। तो ये हमने सिर्फ एक ही स्टॉक का किया है, अभी दूसरा स्टॉक जो है उसका बाकी है, ओरिएंटल शिपिंग, इसका बाकी है। भारत फूड स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 3.5। नाउ ओरिएंटल का 0.30 इंटू 40 12। नाउ एक्सपेक्टेड रिटर्न था उसका 13.5, तो 40 में से 13.5 आप डिडक्ट करोगे तो होगा, सॉरी 13% था, यस 13%। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 13% था। प्रोबेबिलिटी सेम है 0.30, 0.50 एंड 0.20। बूम पीरियड में 40% का रिटर्न मिला है, नॉर्मल में 10 में, रिसेशन में -20। दोनों को मल्टीप्लाई किया 12, 5 एंड -4। एक्सपेक्टेड रिटर्न RI माइनस ER एक्सपेक्टेड रिटर्न 40 माइनस 13
27, 10 minus 13 minus 3 minus 20 minus 13 equal to minus 33. So expected return we know very well, 13%. Then Ri minus Er square, 27 into 27, 3 into 3, 33 into 33. Then the calculations, so you will get sigma pi into bracket Ri minus Er bracket over square, 441. And the standard deviation formula, and the final answer is 21 percentage. The same calculations has been made जो हमने भारत फूड स्टॉक में किया था, वही calculations हमने यहाँ पे किया है. No change at all. So now guys, both the calculations are clear to you. Guys, both the calculations are clear to you. Okay, very good. So today we'll keep up to this only. In the next session, we'll start with the relationship between risk and expected rate of return. Now, before we conclude, सपोज आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना चाहते हैं, तो आप कौन सी स्क्रिप्ट में पैसे लगाएंगे? ओरिएंटल शिपिंग में या तो भारत फूड में? कम ऑन आंसर क्विकली. आप कौन से स्टॉक में पैसा लगाएंगे, भारत फूड में या ओरिएंटल शिपिंग में? एवरीवन इज सपोज टू आंसर क्विकली. गाइस, कैन यू हियर मी? आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स. आप कौन से स्टॉक में पैसे लगाएंगे, भारत फूड में या तो ओरिएंटल शिपिंग में? कैन यू हियर मी गाइस? यस, सो आई हैव आस्क्ड वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आपको पैसे लगाने हैं तो आप कौन से स्टॉक में लगाएंगे, भारत फूड में या ओरिएंटल शिपिंग में? ओके, अभी पैसे मत लगाओ, अभी थोड़ा मार्केट काफ़ी हाई पे है, तो ठीक है, चलो अभी पैसे मत लगाओ, अभी संभाल के रखो, मार्केट जब डाउन आएगा तब लगा देना, ठीक है? डन. चलो गाइज, विल कीप अप टू दिस ओनली. दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू सो मच. एंजॉय योर डे. टेक केयर. थैंक यू.